بے پرواہ قسم کی ایک گورنمنٹ تشکیل دی گئی جس کا آپ کو پتہ ہے کہ چوچو کا مربع ہے. یہ چند ہفتے چند مہینے یا چند دنوں کی مہمان نظر آتی ہے جو ان کے حالات ہیں. 15,50,000 نئے ووٹر کا اندراج ہو چکا ہے، یعنی کہ 2 مہینوں کے اندر 15,50,551 نئے ووٹر کا اندراج ہو چکا ہے. ریحان زیب کا نام آپ کو یاد ہوگا، جس کا جو پی ٹی آئی کا ایک بھرپور قسم کا ورکر تھا، اس کا اندھوناک ایک مرڈر ہوا اور وہ کمپین کے درمیان اس کا مرڈر ہوا. وہ اپنے آپ کو اوریجنلی عمران خان کے مشن پہ رکھتا تھا، اسی کی طرح وہ ہاتھ ہلاتا تھا، اس کی طرح وہ بولتا تھا، بال بھی اس طرح کے بناتے تھے. بڑا زبردست قسم کا پی ٹی آئی کا ایک ورکر تھا، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہ موت کے منہ میں چلا گیا اور اس کا ہمیں بڑا دکھ ہے. تو اس کا الیکشن نہیں ہوئے تھے، تو آج وہ دوبارہ اس پہ الیکشن ہو رہے ہیں. 1938 کا دن بڑا ایک یادگار دن ہے. مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی وفات کا یہ دن ہے. آپ بادشاہی مسجد کے پہلو میں دفن ہیں. جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد جمیل، ناروے کے کیپٹل اوسلو سے. دوستو، آج کے اس ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم بات کریں گے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی الیکشن کروانے کا بگل بجا دیا. تو یہ الیکشنز ہوں گے جی 21 اپریل کو. اس میں کون کون سے امیدواران میدان میں اتریں گے اور یہ کون کون سے حلقے ہیں اور یہ کن لوگوں نے یہ سیٹس چھوڑی تھی جس پہ اب یہ مارکا ہونے جا رہا ہے. تو قبل اس کے کہ ہم اس ڈیٹیل میں جائیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں جی آج کا اپنا ویلاگ. اچھا جی، آپ کی یاد دہانی کے لیے اوبویسلی آپ سب کو پتہ ہوگا، لیکن میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کو اس کی یاد دہانی کراتا جاؤں کہ 21 اپریل 1938 کا دن بڑا ایک یادگار دن ہے. مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی وفات کا یہ دن ہے. آپ بادشاہی مسجد کے پہلو میں دفن ہیں. تو آپ کی روح کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آپ نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا، اس میں ہر دور میں بہت زبردست قسم کے الیکشن ہوئے، بڑی حکومتیں آئیں، بڑے لوگ آئے، لیکن اس دفعہ جو الیکشن ہوئے تھے 8 فروری کو، وہ بڑے ایک یونیک قسم کے الیکشن تھے. ایک تو یہ ہے کہ بہت بڑا ایک ٹرن اوور تھا. اس میں ایک اور بڑی خاص بات تھی کہ عوام کا ایک جم غفیر نکلا عمران خان کی کال پہ، اور عمران خان کی جو حمایت یافتہ جو امیدواران تھے، پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے، ان کو عوام نے ایک لمبا چوڑا ووٹ کیا. 90% سے زیادہ لوگوں کو ووٹ ملے، ان کو 2/3 کی اکثریت ملی. لیکن رات کے ایسے ایک گھپ اندھیرے میں ایسی ایک سازش کا ایک تانا بانا بنا گیا کہ رات کو جو بندے جیت رہے تھے، صبح وہ ہارتے ہوئے نظر آئے، اور جو رات کو جو بندے ہار رہے تھے، اگلے دن وہ جیتتے نظر آئے. تو یہ عجیب قسم کا ایک ٹوپی ڈرامہ تھا، عجیب قسم کا ایک غیر سنجیدہ قسم کا الیکشن تھا. تو اسی نتیجے میں ایک بڑی بے پرواہ قسم کی ایک گورنمنٹ تشکیل دی گئی جس کا آپ کو پتہ ہے کہ چوچو کا مربع ہے. یہ چند ہفتے چند مہینے یا چند دنوں کی مہمان نظر آتی ہے جو ان کے حالات ہیں. تو آپ کی روح کو گواہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا پاکستان کا، وہ خواب تو بالکل تکمیل ہو گیا. قائد اعظم کی والہانہ انتھک محنت کے بعد پاکستان تو مارز وجود میں آیا. لیکن آپ کے پاکستان کے ساتھ، آپ کی پاکستان کی عوام کے ساتھ بہت زیادہ کھلواڑ ہوا ہے. اسپیشلی اس کے ووٹ کے ساتھ جو بے حرمتی کی گئی، جو اس کا کھلواڑ کیا گیا، اس کی نظیر نہیں ملتی. تو اس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 2 ہے، یعنی کہ اس کا یہ پارٹ 2 اب شروع ہونے والا ہے 21 اپریل کو. اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پہلے اگر 90% لوگوں نے ووٹ کیا تھا عمران خان کو، تو اب یہ 99% لوگ میدان میں نکلیں گے، کیونکہ اب ان کا غصہ اور زیادہ بڑھ چکا ہے. کیونکہ پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک عوام کا جم غفیر نکلا، ان کو دھاندلی کرنا، ان کو سنبھالنا مشکل پڑ گیا تھا. تو اب یہ دیکھیے گا کہ اب عوام کا ڈبل ٹرپل % جو ہے نا وہ ان پہ غصہ ہے، اور اب عوام کا واقعی ایک جم غفیر نکلے گا. ایک سروں کا ایک سمندر نظر آئے گا آپ کو کہ 21 اپریل کو جس طرح یہ ووٹ کریں گے، اور واقعی وہ ووٹ کر کے اس کام کو امر کر دیں گے کہ اس سے زیادہ عوام کوئی نکل کے کبھی کسی پارٹی کو کسی نے ووٹ نہیں کیا. تو میں آپ کو تھوڑے سے اسٹیٹسٹک میں بتاتا چلوں. اینڈ میں اپنا جو ویلاگ ہوگا اس میں
ट्रिब्यूट भी पेश करूँगा डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की रूह को। उन्होंने जो पोइट्री की, उन्होंने जो खुददारी और जो शाहीन का जो कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने जो नौजवान को अपनी पोइट्री के ज़रिए बेदार किया, तो उसका भी मैं हवाला एंड में दूंगा। तो मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स मैं लेके आया हूँ आपके लिए, मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं वो शेयर करता चलूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कौमी असम्बली की टोटल जो नशिस्तें हैं जिस पे ये दंगल होगा, जिस पे ये मार्का होगा, ये होंगी 23 सीटें, 23 सीट्स हैं जी, जिसमें 6 कौमी असम्बली की सीट्स हैं। इसके अलावा पंजाब की 12 हैं और केपी की 2 हैं और सिंध की 2 हैं, सॉरी बलोचिस्तान की 2 है, सिंध की 1 सीट है। तो ये सारी टोटल मिल मिला के होगी जी 23 सीटें। तो इस पे बड़ा भरपूर किस्म का होगा जी दंगल। और इस दंगल को डिस्कस करने से भी पहले मैं आपको बताता चलूँ, और आज ही बल्कि मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी मैं कुछ वर्क कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने कुछ अपडेट्स देखी। तो उन्होंने उस वेबसाइट में लिखा है जी कि 8 फरवरी से लेके आज के दिन तक तकरीबन 2 महीनों की जो रफाकत है, उसमें तकरीबन 15,50,000 नए वोटर का इंदराज हो चुका है। यानी कि 2 महीनों के अंदर 15,50,551 नए वोटर का इंदराज हो चुका है। तो मैं चूँकि ये वीला कर ही रहा था, तो मैंने कहा चले ये भी एक तारीख का हिस्सा है, तो इसको भी साथ में डिस्कस कर देना चाहिए। पहले आपको याद है कि जब हमारा ये 8 फरवरी का जो ड्रामा हुआ था, उसमें 12 करोड़ और 85 लाख रजिस्टर वोटों ने वोट किया था और 13 करोड़ और 1 लाख के करीब जो हमारे वोटर हैं। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स से मैंने कहा चले मैं आपसे ये भी मैं शेयर करता चलूँ। तो अब हम चलते हैं जी, जो पार्टी जो पोजीशन है, जो हलकों में कौन कौन से हलके हैं जहाँ से कौन कौन से जो हमारे जो लीडरान हैं, वो कौन कौन से लीडरान मैदान में उतर रहे हैं और पहले कौन से बंदों ने इन सीटों को छोड़ा है। तो पहले हम जिक्र करते हैं जी कौमी असम्बली का। कौमी असम्बली में कितनी सीट्स हैं जी? 6 नशिस्तों पे इलेक्शंस हो रहे हैं। जो पहला जो हलका है वो है जी NA 8। NA 8 आपको याद है कि मैंने इस पे अपना पूरा एक विला किया था। रेहान ज़ेब का नाम आपको याद होगा, जिसका जो PTI का एक भरपूर किस्म का वर्कर था, उसका अंधोनाक एक मर्डर हुआ और वो कैंपेन के दरमियान उसका मर्डर हुआ। वो अपने आप को ओरिजिनली इमरान खान के मिशन पे रखता था, उसी की तरह वो हाथ हिलाता था, उसकी तरह वो बोलता था, बाल भी उस तरह के बनाते थे। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का PTI का एक वर्कर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो मौत के मुंह में चला गया और उसका हमें बड़ा दुख है। तो उसका इलेक्शन नहीं हुए थे, तो आज वो दोबारा उस पर इलेक्शन हो रहे हैं। और मैं ये है जी बाजोड़ का NA 8। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर अवाम ने अब एक भरपूर तरीके से इसको वोट करना है। अब वहाँ पर अब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो हैं जी गुल ज़फ़र ख़ान। और गुल ज़फ़र ख़ान उनका ज़ाहिर है अब मिशन लेके आगे चलेंगे, तो इनका इंतखाबी निशान है जी घोड़ा। PTI के जो अब वर्कर्स हैं वो घोड़े के निशान पे, चूँकि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो था इंतखाबी निशान, तो उस पर ये करेंगे, इलेक्शन कैंपेन अपनी करेंगे। तो मैं PTI के तमाम जो सूबाई जो क़यादत है या जो नेशनल असम्बली की क़यादत है, मैं उसको कहूँगा, जो वोटर्स हैं, जो अवाम है, मैं उनको कहूँगा कि आप भरपूर किस्म की इस दफ़ा कैंपेन कीजिएगा, ताकि जो रहती सहती कसरती वो भी निकल जाए। तो NA 8 से गुल ज़फ़र ख़ान साहब इसमें शिरकत करेंगे और कंटेस्ट करेंगे। और जो NA आगे आता जी, जो नंबर 2 जो नशिस्त है वो है NA 44। NA 44 डेरा इस्माइल हाँ की है। उसमें अली अमीन गंडापुर ने इलेक्शन जीता था और बड़ी ठीक ठाक किस्म की मार्जिन पे जीता था। तो वो उन्होंने ये नशिस्त खाली की है, क्योंकि अब वो CM हैं। तो वहाँ की नशिस्त अब उनके भाई वहाँ से कंटेस्ट करेंगे, जिनका नाम है जी फैसल अमीन गंडापुर। अच्छा, फैसल अमीन गंडापुर की जब मैंने कैंपेन देखी या मैंने उनकी तस्वीरें देखी या उनकी मैंने, वो बिल्कुल उसका ओरिजिनल भाई लगता है, क्योंकि उसी की तरह उनके बाल हैं, उसी की तरह उनकी शक्ल है और उसकी तरह ही वो बोलने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा अच्छा ये कम बैक होगा, मुझे बड़ा मज़ा आएगा जी वो इलेक्शन कैंपेन में जब उसको हम फॉलो करेंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं जी NA 119। NA 119 आपको पता है जी कि वो मैडम रानी की ये नशिस्त थी। 119 ये हल्का है लाहौर का, और वहाँ से कन्फर्म जीते थे जी शहजाद फ़ारूक। शहजाद फ़ारूक आपको पता है बड़ी अच्छी खासी लीड से जीते थे, लेकिन इनको तो हज़म नहीं होती लीड। इन्होंने रातों रात पता नहीं क्या चुरलू फेरा और मैडम जीत गई। और मैडम अब चूँकि CM मसलत है हमारे, तो इसलिए वो जगह खाली है। तो यहाँ से शहजाद फ़ारूक एक दफ़ा फिर कंटेस्ट करेगा, एक दफ़ा फिर यहाँ पर इनको छठी का दूध याद कराएगा। अब चलते हैं जी हम कसूर NA 132। NA 132 कसूर से आपके ये जो शबाना रोज़ मेहनत करने वाले जो है ना वज़ीर आज़म, ये शहबाज शरीफ, ये यहाँ से
जीते थे, अनफॉर्चुनेटली जिताए गए इनको, जीते जीते कोई नहीं थे, इनके पल्ले तो कुछ नहीं था, एवं ये 45 और 47 के रेल पेल में जीत गए थे। और यहाँ से अब ये दोबारा जो इलेक्शन हैं वो दूसरे जो कैंडिडेट हैं सरदार हुसैन डोगर मेरा ख्याल है वो यहाँ से लड़ेंगे। और इसके बाद हम चलते हैं जी कंबर शहजाद कोट NA 196, यहाँ से जीते थे जी बिलावल भुट्टो जरदारी। वो भी आपको पता ही है कि सिंध का जो मुकद्दर है वो आपके सामने है। इन लोगों ने तो वहाँ पे कोई ढंग का काम कभी किया कोई नहीं है, बस अपनी एक जागीर बनाई हुई है। मारूसी सियासत का तो असल जो आपने देखना है ना, जो जनाजा जो निकलता है वो इन इलाकों में निकलता देखेंगे आप। और वहाँ पर ये दोबारा फिर अपने ही बंदे को लेके आएंगे सामने। और अब हम चलते हैं जी जो आखिरी जो आखिरी जो नशिस्त है, जो छठी जो कौमी असम्बली की नशिस्त है वो है NA 207। NA 207 पे मैंने भरपूर किस्म का एक वीला किया था। हमारी ये जो फर्स्ट लेडी हैं मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा, इनको अनअपोज्ड बिला मुकाबला फार्म 34 की बदौलत, आपको याद ही होगा, मैं सारी चीज़ें आपको दोबारा फिर याद करा दूँ, अनअपोज्ड बिला मुकाबला ये जीती थी। क्योंकि बाकी सारे बंदे दौड़ गए थे या भगा दिए थे या वो पता नहीं क्या हो गया था उन लोगों को, रातों रात उन्होंने अपनी दरखास्तें वापस ले ली, तो वो यहाँ से जीती थी। तो आज बल्कि एक बड़ा एक हसीन एक इत्तेफाक है कि आज बल्कि उनकी कौमी असम्बली में हल्फ बर्दारी थी। सरदार अयाज सादक ने आज उनसे हल्फ बर्दारी भी आज उनसे हल्फ भी लिया। और मैं बताता चलूँ कि अपोजिशन ने बड़ा अच्छा खासा शोर डाला था इस पे। तो ये टोटल 6 नशिस्तें हैं जो कौमी असम्बली की हैं जिस पे अब इलेक्शंस होंगे। तो अब हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं, लंबा हो गया जी बड़ा वीलॉग, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। जो पंजाब की जो सिचुएशन है उसमें टोटल 12 नशिस्तें हैं और मैं जल्दी जल्दी बस दोहराता चलूँ। उसमें चकवाल 22 की नशिस्त है, ये हल्का है जी चौधरी निसार अहमद का। और उसके बाद जी PP 32 ये है जी परवेज़ लाई का जो हल्का था वो है। PP 36 वज़ीराबाद, यहाँ से मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब ने विन किया था, जिताया गया था। PP 94 ये एहसन इकबाल का हल्का है। PP 93 ये मोहम्मद आमर इनायत का हल्का था। PP 139 शेखुपुरा ये राना तनवीर का हल्का था। PP 147 हमजा शरीफ, आपको पता ही है कि इनके साथ शरीफ जो लगा हुआ है तो फिर इन्होंने इसी तरह के काम करने हैं। और PP 149 अब्दुल अलीम ख़ान यहाँ से जीते थे, आपको पता ही है उनका। और PP 158 शहबाज शरीफ यहाँ से एक दफ़ा फिर जीते थे, आप चूँकि वो आपके वज़ीर-ए-आज़म मुसल्लत हैं तो इसलिए उन्होंने ये नशिस्त खाली की। PP 164 से शहबाज शरीफ एक दफ़ा फिर अपने आप को सिक्योर करने के लिए उन्होंने ये सीट यहाँ से जीती थी, तो अब वो ये भी सीट छोड़ रहे हैं। PP 266 से रहीम खान से यहाँ पे इलेक्शन ही नहीं हुए थे। और PP 290 यहाँ से अवैस लगारी जो अब बहुत बड़ी नशिस्त उन्होंने संभाली हुई है, तो उन्होंने ये नशिस्तें खाली की थी। तो ये 12 नशिस्तें वो हैं। अब आते हैं जी KP में। KP में 2 नशिस्तें थी जो खाली हुई थी और दोनों पे इलेक्शन नहीं हुए थे। एक थी बाजोड़ की 22 और दूसरी थी PK 91 कोहाट। ये 2 सीटें खाली हैं, यहाँ पर इलेक्शन लड़े जाएंगे। दादू 80 PS 80 दादू, यहाँ से अब्दुल अजीज़ जनेजो साहब जीते थे पीपल्स पार्टी के। उनकी डेथ हो गई थी, आपको याद होगा कि मेरे हाल इलेक्शन के कुछ बाद को हफ्ता 10 दिन बाद उनकी डेथ होगी। तो ये सारी नशिस्तें हैं जी जो टोटल अब जिन पे दंगल होगा। और आप देखिएगा कि PTI के जो गयूर जो वोटर हैं वो टिका के वोट करेंगे और अच्छा खासे मार्जिन से आपको जीतते हुए नज़र आएंगे। लेकिन होगा वही जो ये चाहेंगे, उस पर तो हम बात नहीं करते। तो आखिर में मैं आपको पता है कि ये 21 अप्रैल को ये इलेक्शन हो रहे हैं और 21 अप्रैल आपको पता है कि मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की डेथ एनिवर्सरी है। तो उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मैंने उनकी चंद एक शेर जो है ना मैंने नोट किए हैं, वो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आज के दिन की मुनासबत से वो मैं दोहराऊँ। वो शेर है जी, बड़े पहले भी आपने सुने होंगे लेकिन इस दफ़ा चूँकि एक ज़रा मोमेंटम है, ज़रा एक दिल कर रहा है ताकि आपको उसका भी लुत्फ़ आए। झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। आखिर में एक दफ़ा फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और व्लॉग में। थैंक यू सो मच। जज़ाकुमुल्लाह जी। खुदा हाफिज़।